जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बांह फड़ी। गुरु महाराज जी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना। सानू ये स्वास देन दा शुकराना गुरु महाराज जी। सानू अपनी अनकंडीशनल लिमिटलैस ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। सानू अपने दर्शन देन दा शुकराना, साडे कष्ट खत्म करन दा शुकराना, साडी गलतियां माफ़ करन दा शुकराना, पिछले जन्म दे इस जन्म दे आने वाले जन्म दे कष्ट घटान दा शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੜਾਈਏ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ जी शुकराना 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 गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਵਾਈਫ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਸਕੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਡਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਰ। ਔਰ ਉਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈ, ਪੁੱਤ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਰਾਵਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਪਾਏ ਹੈ, ਬੇ ਉਪਾਏ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉਪਾਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੌਂਗ ਪਾ ਦਿਓ, 7 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆਪਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਧਾਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ 7 ਲੌਂਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਡਾਂਸ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਬਟ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨੀਂਦ ਐਵੇਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਦਿਨ ਉਠਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਖੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਸੌਂਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। लव यू लव यू लव यू लव यू लॉट गुरु महाराज जी। माफ़ करना संगत जी, मैंने सच्ची बहुत नींद आ रही है, इस समय मेरी अखा बिल्कुल भारी ने और बंद हो रही ने, मैंने समझ ही नहीं आ रहा क्यों। पर थोड़ा बहुत बहुत शुकराना कि तुसी ये सत्संग सुनोगे। आंटी जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना कि तुसी ये सत्संग शेयर करोगे। शुकराना 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 शुक ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, 9:57 हुए हैं और मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए संगत जी उतना कम है, क्योंकि हमारे गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे टेलीपैथी के जरिए कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर गुरु जी को पता है मैं गुरु जी की आलसी बेटी, या यूँ कह लीजिए कि शायद जब तक कहते हैं ना, जब तक परमपिता परमेश्वर की आज्ञा ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वही मेरे साथ हुआ। मैं हर रोज़ सोचती कि शुक्राना करूं, शुक्राना करूं, बस हर रोज़ सुबह करूं, शाम करूं, कर ही नहीं पाती। परंतु गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देना नहीं भूलते। हम आलसी इंसान भूल जाते हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। परमपिता परमेश्वर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखना, उनके सर पर अपना हाथ बनाए रखना, सारी संगत पर, मनुष्य प्राणी पर, जीव जंतु पर, इस सृष्टि पर अपना आशीर्वाद हमेशा 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 हर पल बनाए रखना। गुरु जी महाराज, सबको आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है, और साथ में आप अपना भी ध्यान रखना। सबके कष्टों को हर लेते हो मेरे परमपिता परमेश्वर। आप ही महाशिव हो, आप ही मेरी माँ माता रानी हो, आप ही मेरे परमपिता परमेश्वर हो। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। सॉरी संगत जी, मैं इसे करना भूल गई थी, या कह लीजिए कि मैं आलसी प्राणी नहीं कर पाई। संगत जी, हमारे पड़ोस में लड़की की शादी थी, और वो लोग कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदार आएंगे तो उनको ठहरने की व्यवस्था हम आपके घर पर करेंगे। कोई बात नहीं, मैंने अपने पड़ोसी को बोला कोई बात नहीं, हम अपने घर में जितनी व्यवस्था होगी करेंगे। पर संगत जी, ये तो गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने जो करवाया वो एक चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी, हमने उनके ठहरने की व्यवस्था अपने घर पे कर दी। जो भी रिश्तेदार थे वो हमारे घर पर ठहर सकते थे हमने, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं सर्दी का महीना है और गर्म कपड़ों की बहुत आवश्यकता होती है। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, गुरु पर जैसे करवाएंगे हम वैसा ही करेंगे। उससे पहले गुरु जी के बहुत से मैसेज मुझे मिल रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान ले, कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान ले, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। संगत जी, पर हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था। किस प्रकार से गुरु पर हमारे घर आए, ऐसा हुआ ऐसे कि हमारे पड़ोस में जो बेटी है उसकी शादी 17 जनवरी को होनी थी, और उनके जो रिश्तेदार थे वो दिल्ली से आए थे। गुरु जी सच में हमारे घर आए,
संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही हमारे घर के आगे गाड़ी आकर रुकी, मेरा बेटा एकदम से भागता हुआ मेरे पास आया। मम्मी जी, गुरुजी आ गए। मैंने सोचा ये वैसे ही मेरे साथ मजाक कर रहा है कि मम्मी थोड़ा, मैं उस टाइम थोड़ा सीरियस सा बैठी थी कि मम्मी का माइंड चेंज हो जाए। संगत जी, मुझसे कहने में अगर कुछ गलती हो रही हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी, जिसमें हमारे पड़ोसियों के रिलेटिव आए थे, या कह लीजिए गुरुजी आए थे, उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था गुरुजी, यानी कि गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी गाड़ी से हमारे घर आए थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब उन रिश्तेदारों को पता चला कि ये भी गुरुजी को मानते हैं, तो उनकी भी खुशी दुगनी हो गई। और वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे व्यवस्था होगी, क्योंकि सर्दी की शादी है और 3-4 दिन के प्रोग्राम है, और सर्दी में बच्चे भी हैं साथ में, कहाँ पर ठहरेंगे, क्योंकि शादी विवाह के घर में सबको एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर पड़ोस में या घर परिवार में शादी हो और वो भी बेटी की, तो और भी ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। संगत जी, गुरुजी घर आए। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। हर सांस का शुक्राना। और संगत जी, शादी में हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, पता ही नहीं चला कि वो 3-4 दिन कैसे निकल गए, कैसे नहीं। मुझे तो अभी तक भी विश्वास नहीं होता, अभी तक भी विश्वास नहीं होता। गुरुजी हर पल, हर क्षण, हर बात को कैसे जान लेते हैं। संगत जी, ये छोटा सा शुक्राना, सत्संग, जो भी आंटी अंकल मेरा इस शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर प्रस्तुत करते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से मेरे मालिक। उनको भी ढेर सारी खुशियाँ देना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना, हर पल ब्लेस करना मेरे मालिक। हर सांस, हर आस, हर विश्वास का शुक्राना मेरे मालिक। बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। आप हर पल अपने बच्चों के चिंता करते हो, हर पल। सच में आपने कहा था मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सच में आप प्रैक्टिकल हो, बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग करते हुए संगत जी, अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु बा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपके सामने फिर एक बार अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। वैसे जो गुरु जी की कृपा आप सब पे भी है और मेरे पे भी है। गुरु जी हम सब के अंग संग सहाय रहते हैं, ये हम सब फील करते हैं। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से
वैसे तो सारे काम गुरुजी की कृपा से होते हैं, बस गुरुजी पे छोड़ा होता है और गुरुजी वो काम करते जाते हैं। गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी को सबसे पहले तो शुक्राना करना चाहती हूँ अपने मदर की तरफ से, बिकॉज़ उनकी ना डॉक्टर ने कहा था कि उनकी आइज़ में एज हो गई है, तो उनकी आइज़ में भी ना वो मोतिया बिंदु, वाइट मोतिया बिंदु आ गया था। तो मैंने गुरुजी से हम प्रेयर करते थे, मैं अपने मेरे मदर गुरुजी को वो भी मानते हैं और वो गुरुजी का जल प्रसाद वो आइस पे लगाते थे। और शंकर जी थोड़ा सा गला ठीक नहीं है तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो 2 दिन पहले ही मैं अपने मदर को डॉक्टर के पास लेके गई थी कि बिकॉज़ अब उसको ऑपरेट करवाने का टाइम आ चुका था, कि पहले वो कुछ टाइम होता है ड्यूरेशन उसके मोतिया की। सो गुरुजी की बहुत बहुत, तो मैं गुरुजी का की ब्लेसिंग्स है, उनका शुक्राना मैं करती हूँ कि जब डॉक्टर ने चेकअप करा तो उन्होंने कहा कि इनका पर्दा बिल्कुल ठीक है, तो बस मोतिया है वो निकालना है। सो गुरुजी ने बहुत थोड़े में मेरी मदर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और अब गुरुजी अपने आप ही सारा ये ऑपरेट जो भी है वो करवाएंगे और ये सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आप थोड़े में ही उसको आप हर चीज़ को थोड़े में ही टाल देते हो। कष्ट तो हमारे अपने कर्म हैं जो हमें डेफिनेटली हम सबको काटने पड़ेंगे, पर गुरुजी थोड़े में काट देते हैं। ये बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा तेरे घर में अब पहले आते थे लेकिन अब बीच में बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी थे, अब फिर आने लगे कि अभी भी लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं और इसका थोड़ा मुझे दिखा भी कि मेरे हस्बैंड को की नेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो जैसे कि किसी का बहुत बड़ा प्रेशर हो और गुरुजी अपने आप ही उपाय बता के वो उसको ठीक भी कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं कैसे कैसे गुरुजी खुद ही कहते हैं कि ये कर लो, ये उपाय कर लो। कुछ उपाय हो भी जाते हैं और कुछ नहीं भी हो पाते हैं, तो गुरुजी उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ करना। आपके बच्चे हैं, हमें समझ ही नहीं आती है, बड़े नासमझ बच्चे हैं हम आपके। सो जितना आपको पता है मन से हम सब कुछ करना भी चाहते हो, शायद जो करते हैं आप प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट करो। और मैं गुरुजी से ऐसे ही कहती हूँ, गुरुजी आप ही करवाना जो भी करवाना, और जैसे करवाओगे जो करवाओगे मैं ये आपकी रज़ा समझ के वो करती जाऊँगी। तो इस तरह से गुरुजी अपने आप ही सारे काम वो करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं गुरुजी ने हमारे घर पे आए हुए कष्ट को कहाँ से काटा, क्योंकि 2 दिन पहले मैं भी 2-3 दिन पहले मैं भी बहुत आई थिंक 4 डेज़ पहले सैटरडे को ही बात है शायद। तो मैं भी जब मुझे ये ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे, मैं बहुत बीमार पड़ गई। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हस्बैंड का, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से उनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हावी हो जाता है, इन लॉज की तरफ से किया हुआ, जो गुरुजी ने पहले भी साफ साफ बताया हुआ है। और गुरुजी अपने आप ही उपाय भी बताते हैं, और गुरुजी के होते हैं मुझे ना टेंशन, संगत जी सच बताऊँ तो होती तो थोड़ी है, लेकिन फिर मैं एकदम से छोड़ देती हूँ क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। और बट मुझे फिर गुरुजी पे पूरा विश्वास है, गुरुजी अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने बच्चों को जिस हालात में रखेंगे वो सही रखेंगे, उन्हें पता है उन्हें बच्चों को अपने किस हालात में रखना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की। और सॉरी गुरुजी अगर मैं मन में थोड़ी कभी शंका आती भी है, डर भी आता है, क्या होगा पेरेंट्स के लिए, उनका क्या होगा, यहाँ काम मेरे हस्बैंड का काम है और उनका ये ब्लैक मैजिक कब सारा ख़त्म होगा, कब वो लोग पीछा छोड़ेंगे, ये सब बातें माइंड में आती है। फिर पर एक होप गुरुजी वो सामने आ जाते हैं और वो अपने आप ही फिर आ जाता है सब कुछ उनके ऊपर हम लोग उनके ऊपर रख देते हैं, गुरुजी आप देखो। मैं ये कह के ही छोड़ जाती हूँ और अपने आप गुरुजी सब ठीक करते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस ज़िंदगी को ऐसे ही आप हम बच्चों की अपनी संगत की माँ पकड़ के इस तरह हमारी ज़िंदगी को चलाते रहना, बस इसी तरह चलाते रहना। और जब हमारा भी अंत आए तो प्लीज़ आप अपने चरणों में लगा लेना। ये इस बेटी की आपसे अरदास है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ संगत जी, बट वो खुद ही बुलवा रहे, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी और खुद ही उनसे जो गुरुजी करवाएंगे वो सही करवाते हैं। और
गुरुजी इस तरह से अपने दोतरे को भी ब्लेस करें, मेरे भाई को भी जो कि उनकी संगत है, गुरुजी उसको ब्लेस करें, वो जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं हर पल यही अरदास है, और पेरेंट्स भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है उनके उसके साथ बिताएं और उनको भी तंदुरुस्ती बख्शे। गुरुजी सब आपके हवाले है, सब ठीक करना। सारी संगत को जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो शेयर करते हैं, उन सब के भी आप अपने बाँह पकड़े रखना, और इस तरह से हम सबको इकट्ठे इस सारे संगत परिवार को आप चलाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अभी यहीं संपूर्ण करती हूँ, फिर नए सत्संग के साथ आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए शुक्राना गुरु जी। और उस पहले फिर मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक सत्संग में एकदम से मेरे माइंड में आया, मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का एक स्वरूप मुझे एक सत्संग में मुझे मिला था, वो रेड चोले वाला। मेरे को बड़े मन था कि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिले, और वो मैंने फ्रेम करा के अपने घर में, अपने मंदिर में ही लगाया हुआ है। और मुझे ऐसे फील होता है कि बस अब गुरुजी विराजमान हो गए हैं, और उन्होंने ये कहते कि अब इस घर में कोई बुरी चीज़ नहीं आ सकती, कोई आए तो मैं गुरुजी ने अपने आप इसे ख़त्म कर देना। ये फीलिंग अपने आप गुरुजी ने दिलवाई, और एकदम से वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो गुरुजी के हर स्वरूप में अपनी ही एक बात है। तो मैं बस, मुझे अपने आप ही वो हर स्वरूप अपने आप में कुछ कहता है और कुछ बताता है कि ये है। मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं है, मैं बहुत अनाड़ी संगत हूँ गुरुजी की, बट मेरी फीलिंग आ रही है कि वो बस अब मेरे पास है, सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होने देंगे गुरुजी। जैसे हमारे कर्म है गुरुजी, अपनी संगत को ऐसे बाँह पकड़ते हुए लेते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। गुरुजी इस तरह ही अपने इस परिवार पे आप पूरा अपना आप आशीर्वाद बनाए रखना, और अपने परिवार को, अपने दूसरे यार को, मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल इन जादू टोनों से ख़त्म करके, प्लीज़ उन्हें वशीकरण से ख़त्म करके प्लीज़ हमारे पास पूरी तरह से वापस भेज दें गुरुजी। और मेरे ब्रदर को भी ठीक करने की अरदास मैं आपके सामने करती हूँ। पेरेंट्स मेरे ब्रदर के साथ बहुत अच्छी तरह खुश रहें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, और कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो बोलने में संगत जी कोई गलती हो तो आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, शुक्राना गुरुजी की संगत होने के लिए, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुपाल, लव यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेके आ गई हूँ। अपने गुरु जी के शुक्राना करने से पहले मैं अपने बाबा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना हर गलत काम से बचाने के लिए, शुक्राना हर चीज़ हमें एहसास कराने के लिए, शुक्राना सारी गलत आदतों को छुड़ाने के लिए, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके इतने शुक्राने हैं गुरुपा, क्षमा करना, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दंडवत आपके चरणों में अपना माथा रख के मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे बाबा कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा, गुरु महाराज मुझे माफ़ करना मेरे बाबा, मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आंटी जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, क्योंकि आप मेरे सत्संग हमेशा अपलोड कर देते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारे शुक्राने सत्संग किए थे आंटी जी, पर कोई चैनल में मेरे अपलोड हुए नहीं। शुरू के 4-5 सत्संग मेरे अपलोड हुए हैं, उसके बाद कोई नहीं हुआ है। कम से कम 30-35 शुक्राने सत्संग मेरे
अलग अलग चैनलों में है, वो किसी ने अपलोड नहीं किए हैं। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करें, आपके घर परिवार पर उनका हाथ हमेशा बना रहे। संगत जी, संगत आंटी जी, गुरुपा आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा मैं आपकी पूजा भी सही से नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा मैं जॉब करती हूँ, सुबह घर से निकलना होता है, शाम को आना होता है, घर की टेंशन है, ये सब के बीच में आपको तो मैं भूल ही गई। गुरुपा हम आपको भूल भी जाएं, आप हमें कभी मत भूलना मेरे बाबा। आपने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया, अब हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा आप जानते हैं आपकी बेटी कितना परेशान हो रही है। गुरुपा जब भी मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरी हमेशा मदद करते हैं, मुझे अपना होने का एहसास करते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, मुझे हर पल 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मेरे हर पल रहती है। गुरुपा 777 की ब्लेसिंग गुरुपा आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं। गुरुपा बस आज आपकी बेटी थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा निराश है बाबा। मेरे से पता नहीं क्या ऐसी गलती हो रही है जो आप आजकल थोड़ा सा मुझे मतलब ना किसी चीज़ में थोड़ा सा कम मेरी तरफ कम हो रही हूँ। शायद मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। गुरुपा आपकी बेटी आजकल बहुत परेशान है, आपके दामाद भी बहुत परेशान है, क्योंकि हमारा बेटी तो स्पेशल चाइल्ड है लेकिन वो सीधी सादी है। बेटा गुरुपा आप जानते हो आपका पोता मेरा कुछ नहीं है। गुरुपा हम सब आपका है। गुरुपा मेरे बाबा अब हमारा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। आपका पोता मैं सत्संग में बताना नहीं चाहूँगी क्या हुआ है, लेकिन गुरुपा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हम नर हैं, आप भगवान हैं। हमारे पास 2 आँखें हैं, आपके पास 4 आँखें हैं बाबा। मेरे बेटे का आप उसके सर पे हाथ रख दो मेरे गुरुपा। मैं क्या बताऊँ, हर बार बताना उसी के बारे में बताना हो जाता है। गुरुपा वो कब सुधरेगा मेरे बाबा। उसको उसके सर पे अपना मेहर भरा हाथ रख दो मेरे गुरुपा, उसके सर पर मेहर भरा हाथ रख दो मेरे बाबा। सारी संगत आंटियों को ब्लेस करो, उनके बच्चों को अच्छी मत्ती दो, उनके अच्छे संस्कार उनमें भरो गुरुपा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े गुरुपा। जिनकी औलाद सही होती है उनका घर स्वर्ग होता है, जिनकी औलाद बिगड़ जाते हैं उनका घर जीते जी नर्क हो जाता है मेरे बाबा। जीते जी नर्क हो जाता है गुरुपा। मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है बाबा कि मेरा बेटा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना हमारा कहना मानता है। गुरुपा मैं हमेशा मेरी अरदास जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, जब से आपने मेरा हाथ थामा है, बस अपने बेटे के लिए ही मेरी अरदास है गुरुपा। गुरुपा सारी संगत आंटियों की बच्चों को ब्लेस करना मेरे बाबा। गुरुपा आप अपने पोते को भी ब्लेस करना गुरुपा। मेरा वो कुछ नहीं, ना मेरी बेटी है, ना मेरा बेटा है, ना मेरे हस्बैंड है, सब आपके हैं गुरुपा। मैं भी आपकी बेटी हूँ गुरुपा। ये जीवन मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है मेरे गुरुपा। मेरी हर दिन आपसे प्रार्थना रहती है गुरुपा कि आप हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो गुरुपा। घर के कलेशों से हमें मुक्ति दे दो मेरे बाबा। हे मेरे महाराज, हे गुरुपा। आज की आपकी बेटी बहुत उदास है, आपका पोता बिल्कुल कहना नहीं मानता है, अपनी मन मर्जी का करता है मेरे बाबा। आपके हर दिन मैसेज आते हैं, बेटा शुक्राना कर, मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ तो एक शुक्राना तो कर। सारी खुशियाँ तेरे घर के अंदर गुरुपा। मुझे धन नहीं, दौलत नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर की शांति चाहिए मेरे बाबा। मुझे अपने घर की शांति चाहिए गुरुपा। मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ गुरुपा। मैंने धन दौलत घर बंगला कभी नहीं मांगा गुरुपा। मैं जिस हाल में जिस घर में मैं रेंट में रहती हूँ गुरुपा, मैं उसी में खुश हूँ। बस मेरे घर की शांति भंग हो गई है गुरुपा, उस शांति को आप वापस ला दो मेरे बाबा। मेरे बच्चे पर अपना मेहर भरा हाथ रख दो, अपने पोते पर
वो जिस गलत राह में जा रहा है उसको सही राह दिखा दो बाबा। कैसे कैसे बिगड़े लोगों को आपने रास्ता दिखा दिया है, सही रास्ते पे ला गए हैं गुरु पापा। मेरे कर्मों को भी काट के मेरे बच्चों को सही सही दिशा दिखाओ मेरे बाबा। गुरु पापा मैं क्या करूं मेरे बाबा। गुरु पापा आप तो हमेशा मेरे संग संग रहते हैं, आपकी ब्लेसिंग मेरे अंग संग रहती हैं। गुरु पापा मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। मैं कहाँ पर मेरी गलती हो रही है गुरु पापा, मुझे आप बताओ। मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ मेरे बाबा। गुरु पापा गुरु पापा आपसे मेरी एक और अरदास है कि मेरी भाई की शादी कहीं तय नहीं हो रही है, बनते बनते बात बिगड़ जा रही है गुरु पापा। मेरे पापा है नहीं, मेरी माँ बीमार रहती हैं, वो बहुत परेशान है भाई के शादी के लिए। गुरुपा मैं आपसे ये नहीं करी दो, जो सही होगा गुरुपा आप वही करोगे। मेरी आपसे हमेशा अरदास रहती है गुरुपा, जो सही होगा आप वही करना मेरे बाबा, जो सही होगा वही करना गुरुपा। हे मेरे महादेव, हे मेरे शिव शंकर। गुरुपा आपकी बेटी इतना शुक्राना नहीं कर पाती है क्योंकि ज़्यादातर मैं ड्यूटी करती हूँ गुरुपा, इसलिए मुझे टाइम नहीं होता है। आज मैं ड्यूटी में ही थोड़ा सा टाइम निकाल के आपका शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा हर चीज़ में आपने मेरा साथ दिया है गुरुपा। मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। मैं जॉब करती हूँ, थोड़ा बहुत पैसा भी आ ही जाता है गुरुपा। मैं कर्जा लेना नहीं है गुरुपा, हमारा घर चल जाता है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। धन से ज़्यादा हमारे बच्चों में संस्कार आ जाएं, वो सही से अपनी पढ़ाई लिखाई अपने अच्छे से बोलें, अपने माता पिता का सम्मान करें गुरुपा। अगर दूसरों का भी सम्मान करें, अपने माता पिता का भी सम्मान करें गुरुपा। मेरी बेटी स्पेशल चाइल्ड है और बहुत सीधी सादी है, पर मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है बाबा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है गुरुपा, मेरी अर्जी स्वीकार करके मेरे बच्चे पर, अपने पोते पर अपना मेहर भरा हाथ रखना मेरे बाबा, मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा। आप जिस तरह, जिस मोड़, जिस दिशा में आप मुझे ले जाएंगे गुरुपा, मैं उसी दिशा में जाऊंगी। मुझे गलती से भी कोई गलती ना हो मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरुपा। हर दिन देने का शुक्राना, हर रात देने का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल देने का गुरुपा, हर सांस देने का शुक्राना गुरुपा। आपका हम जो एक सांस लेते हैं वो भी हम आपके कर्जदार हैं मेरे गुरुपा, आपके कर्जदार हैं। इस कर्ज को हम कोई जन्म लेके भी नहीं चुका सकते गुरुपा। कितने जन्मों के, कोई जन्म में हमने ऐसा पुण्य किया होगा कि हम आपके शरण में आए गुरुपा। अपने चरणों से शरण, अपने चरण पे हमें लगाए रखना मेरे बाबा। हमें कभी अपने से दूर मत करना मेरे बाबा, हमें कभी अपने से दूर नहीं करना मेरे बाबा। गुरुपा मेरे घर परिवार सारे, संगत आंटियों के घर परिवार सारे, संगत आंटियों के बच्चे, माँ बाप, सबको आप सुखी रखना मेरे बाबा, सबको सुखी रखना गुरुपा, सबको सुखी रखना। मेरी बेटी, अपनी पोती पर भी मेहर करना बाबा। वो कमज़ोर है, स्पेशल चाइल्ड है, उसका माइंड उतना काम नहीं करता गुरुपा, लेकिन वो आपको बहुत मानती है। कुछ भी बात होता है बोलती है गुरुपा से बोलो। मैं तो आपकी पोती से बोलती हूँ बेटा आप ही बोलो, वो आपको बहुत मानती है गुरुपा मेरा। बस मेरे बच्चे को अपने शरण में ले लो गुरुपा, उस पर अपना मेहर भरा हाथ रख दो गुरुपा, उस पर अपना हर वो किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है गुरुपा। हम बिल्डिंग में रहना हमारा बहुत मुश्किल कर दिया है उसने। आज लोग कहते हैं आज ये अमन ने ऐसा किया, आज आपके बेटे ने ऐसा किया, ऐसा किया गुरुपा। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे बाबा, मेरे बच्चे पर अपना मेहर भरा हाथ रख दो गुरुपा, मेहर भरा हाथ रख दो गुरुपा। किसी संगत आंटी के बच्चे को आप गलत दिशा मत दिखाना गुरुपा। जब एक बच्चा गलत दिशा पकड़ लेता है, गलत अपने माँ बाप से जुबान चलाने लगता है, तो माँ बाप को कितना दुख होता है गुरुपा। हमने ऐसे कर्म किए होंगे, हमारे ही ऐसे कर्म खराब होंगे कि आज हम ऐसे दिन देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, 14 साल का बच्चा अपने माँ बाप से इतना जबान लड़ाता है, कहना नहीं मानता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और चीज़ों में उसका मन लगता है गुरुपा। मुझे कहीं से कुछ तो हिंट दो गुरुपा, या उसको कुछ ऊपरी बाधा है, या उसको कुछ नज़र लगी है, क्या लगा है मेरे गुरुपा। आपके सामने में तो सब कुछ, कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपका सिर्फ एक मेहर भरा हाथ, एक आप
एक मेहर भरा हाथी उसके लिए सारे कष्टों को उसके दूर कर देगा मेरे बाबा। वो बिल्कुल कहना नहीं मानता। गुरुपा आपकी बेटी बहुत उदास हो चुकी है मेरे बाबा। गुरुपा आप मुझे जो दिशा दिखाएंगे, जो राह दिखाएंगे, जो आप मेरे को रास्ता दिखाएंगे, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी मेरे बाबा। मुझसे कोई गलत काम कभी ना हो, गलती से भी मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं गुरुपा। सबसे बड़ा धन दौलत मेरे हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा होता है। जब बच्चा सही राह पर चले तो वही सबसे बड़ा स्वर्ग है गुरुपा। लेकिन मेरा बच्चा हमारा ना कहना मानता है ना सुनता है गुरुपा। मैं क्या करूं, मैं बहुत उदास हूँ। आज आपकी बेटी बहुत उदास है गुरुपा। आज मेरे पे कृपा करो गुरुपा, मेहर करो, मेहर करो। संगत आंटी जी, सारे संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप भी गुरुपा से मेरे बच्चे के लिए अरदास करना कि वो इतना बिगड़ चुका है वो सही रास्ते पर आ जाए। गुरुपा, संगत आंटी जी, मैं आज अपने बेटे का ही सत्संग है मेरा, ये गुरुपा से मैं अर्जी लगा रही हूँ गुरुपा। मैं आपसे मैं अरदास कर रही हूँ मेरे बाबा। हे गुरुपा, मुझे अन्न देने के लिए शुक्राना, धन देने के लिए शुक्राना, हर दिन देने के लिए शुक्राना, हर रात देने के लिए शुक्राना, मेरे 2 बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हाँ, सबसे बड़ी बात है हम आज का दिन काट के कल की सुबह फिर हम उठते हैं, वो सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा। वो आपका ही आशीर्वाद है। इस भीड़ भरी दुनिया में, इस ऐसी दुनिया में आज एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है मेरे बाबा। मेरे गुरुपा, गुरुपा जब से हम आपसे जुड़े हैं तब से तो मैंने तो कितनी ऐसी आदतें अपनी छोड़ दी हैं गुरुपा। हमें हर बुरी आदत से बचाना मेरे गुरुपा। बस हमसे अच्छे कर्म हों, हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत न हो, बस हम देने लायक हमें बनाना गुरुपा। हर गरीब का, पशु पक्षियों का, जानवरों का हम पेट पाल पाएँ। जो बोल नहीं सकते हैं गुरुपा, हमसे उनकी सेवाएं हो जाएं। वो जानवर पशु पक्षियों की हम देख रेख कर सकें। हर गरीब, अपने से जो गरीब है उसको हम भोजन के करा सकें, उनकी हम हेल्प कर सकें गुरुपा। हमें इतना लायक बना देना और कुछ नहीं चाहिए। और अपने गुरुपा मुझे 2 बच्चे दे रखे हैं गुरुपा, उन पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा। मेरे बच्चे को अपना बच्चा जैसा बना दो गुरुपा। जैसा आप अपने बच्चे चाहते हो हमें वैसे ही बना दो मेरे बाबा। गुरुपा शुक्राने तो बहुत सारे हैं, पर अभी आपकी बेटी बहुत उदास है, बहुत परेशान है गुरुपा। मन में एक जगह उदासी भी है और एक जगह खुशी भी है कि हम गुरुपा के शरण में हैं। गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे, जब करेंगे अच्छा करेंगे मेरे बाबा। मैं रोज़ रोज़ शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ गुरुपा कि मैं आपका शुक्राना करूँ, पर मेरे से शुक्राना हो नहीं पाता है। मैं जहाँ काम करती हूँ आपको पता ही है, काम कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मुझे टाइम मिलता है। और घर का माहौल गुरुपा, घर जाने के बाद आपका स्वरूप तो मैंने अपने घर पर लगा रखा है गुरुपा। आप देखते ही हैं कि बेटा मेरा कितना कलह कलेश घर में कर देता है। वो लड़ते रहता है गुरुपा। छोटा सा बच्चा है, 14 साल का बच्चा है गुरुपा। उसको क्या कोई ऊपरी बाधा है, कोई नज़र बाधा जो भी है मेरे बाबा, आपके सामने में कुछ भी नहीं है। मेहर करना मेरे बाबा, मेरे कर्मों को काट के मेरे बच्चे को एक शांत बच्चा बना दो, एक संस्कारी बच्चा बना दो मेरे गुरुपा। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी बच्चे को लेके गुरुपा बहुत टेंशन हो गई हैं गुरुपा। हम क्या करें, हम दिल्ली रहें या गांव जाएं, क्या हमारा माइंड सोच ही नहीं पा रहा है हम अपने बच्चे को क्या करें गुरुपा। अब आप जो करेंगे मैं उसी रास्ते पर चलूँगी गुरुपा। जो आप हमारे माइंड में डालोगे हम वही करेंगे मेरे बाबा। आज का शुक्राना मैं यहीं पर विराम देती हूँ मेरे बाबा। मैं अगला शुक्राना की तैयारी करती हूँ। आंटी जी आपको भी बहुत बहुत गुरुपा ब्लेस करें। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा सत्संग हमेशा, जब से मैंने आपके चैनल में डाले हैं, आपने हमेशा अपलोड किए हैं गुरुपा। आपको बहुत ब्लेस करें आंटी जी। गुरुपा से प्रार्थना करना मेरे बच्चे के लिए कि वो एक संस्कारी बच्चा बने, अपने मन पढ़ाई में लगाए और गुरुपा पे लगाए। संगत जी, मेरे हस्बैंड भी गुरुपा को ऐसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब भी पूजा करते हैं सुबह नहा धो के तो गुरुपा के चरणों में
चरण छूते हैं, उनका स्वरूप छूते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। गुरुपा मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आप उनको भी ब्लेस करना, मेरी बच्ची को ब्लेस करना। सबसे ज़्यादा गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, मेरे बेटे को आप ब्लेस कर दो, उसका माइंड सही कर दो मेरे गुरुपा। जो वो गलत हमसे ज़बान चलाता है, इधर उधर ज़्यादा भटकता है गुरुपा, उसको शांत कर दो, उसका मन एक चीज़ में लगा दो मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु इसी जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।